already. Yes. Okay. Right. Namaskar. Today also, let us start this beautiful spiritual session, the spiritual discourse, with some accomplishments which are being accomplished by us. The first and foremost accomplishment and the first and foremost knowledge we have acquired through Gita is that I'm a pervading entity. The first and foremost synopsis of Gita learned so far is, in spite of all the intricacies I'm facing in this life, still I will never come out of my bliss, ecstasy, exuberance, effervescence. The first and foremost modus operandi which I have selected and elected, chose is joy, bliss, ecstasy, exuberance, effervescence. In spite of all the intricacies I'm facing in this life, still I have taken an oath that I will be joyful, blissful, ecstasy. At this juncture, let me explain you that joy is nothing to do with happiness. Happiness is different, joy is different. Happiness is always depending on the situations, incidents, scenarios which are happening in the real life. It has everything to do with physicality. My dear aspirants, let me explain you the truth, the fact that joy has nothing to do with physicality, but it has everything to do with spirituality. And one more thing is, a person who is always laughing, is always mischievous, is always doing some mischief, or who is always laughing, cannot be misunderstood as if he is joyful. Because joy many times is unexpressed. Nobody in this physical world will know whether we are joyful or blissful. It is an innate consciousness. It is an inherent business. The outward, the physical world may not be able to understand whether one is in the state of joyfulness, blissfulness, or whether one is in the sorrow or melancholy. Joy is always our innate consciousness. No one in this physical world can understand whether an entity is in a joyful mood or whether he is in a mood of melancholy. My dear aspirants, believe me, the character may act according to the situation. The character may get sometimes depressed. The character may sometimes get disappointed. The character will respond as per the scenario which is happening in the physical world. A tragic incident might have happened in the life of a character. Believe me, the character will respond accordingly. The character will respond accordingly. It is also in the state of tragedy. When a tragic incident happens, naturally it is also in the state of tragedy. But believe me, the uninterrupted joy happens within you. The uninterrupted joy. I mean to tell you, though the character is in a tragic mood, still the joy in an uninterrupted mood, it happens, it's a continuous phenomenon process. The only thing is, the more and more knowledge is inculcated into your neurological brain, the more and more knowledge is nurtured into your brain, you'll be able to realize that though the character is suffering with melancholy, still the soul, the inner consciousness is celebrating with joy, bliss, exuberance, effervescence.
ब्रह्मानंद हमारा सहजत्व है, ब्रह्मानंद हमारा निज तत्व है, हम आनंद का स्वरूप है। Then what exactly is joy? What exactly is joy? Joy is something which happens when we realize the grand things about ourselves. The joy has started when the true I am has launched the true I am. These are all things which you'll understand later. But at this juncture, at this particular point, it is enough you understand some basic things. Again, I'm repeating. Let us phenomenally declare that in spite of all the intricacies I'm facing, in spite of the hardships I'm facing, in spite of the failures I'm suffering in my life, in spite of the ill health which my embodiment is suffering, still I have taken an oath that I will be joyful, I will be blissful, I will be in the state of ecstasy. First of all, you just repeat that sentence in Hindi. First, only that sentence. Okay. Only that, step by step, will make them realize something about joy. Yes. Yes. आइए आज हम सब ये शपथ लें कि चाहे भौतिक जगत में हमारे साथ कुछ भी क्यों ना घट रहा हो, चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, चाहे हम कितनी भी समस्याओं से घिरे हों, चाहे हम बहुत ही अनारोग्य से बहुत ही अधिक रोगों से ग्रस्त क्यों ना हो, चाहे हमारी वित्तीय संकट, कितना भी बड़ा वित्तीय संकट हमारे ऊपर क्यों ना मंडरा रहा हो, लेकिन फिर भी इन सब परिस्थितियों के बावजूद हम सदा 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 अपनी आनंदमय स्थिति में ही रहेंगे. And the second thing is, though we are using different words like Anand, Brahmanand, Brahmananda Parvash, ये सब एक ही हाल है, ये सब एक ही माहौल है. See, joy, bliss, ecstasy, exuberance, effervescence. But this has nothing to do with happiness. This has nothing to do with happiness. संतोष एक अलग फैक्टर है, ब्रह्मानंद एक अलग फैक्टर है. इन दोनों में केवल शब्द सारूप्य है, शब्द साम्य भी है, लेकिन उन दोनों में बहुत फर्क है. Because happiness is the outcome of the incidents, scenarios which are happening in the physical world. Happiness has everything to do with physicality, but joy has nothing to do with physicality. Joy is the replica of our original consciousness, but happiness is the outcome of physicality. Yes. तो गुरुजी कह रहे हैं कि आनंद, आनंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद पारवश्य, ये सब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन ये सब, इन सब के अर्थ एक ही हैं. ये सब बिल्कुल एक ही शब्द है, ब्रह्मानंद, आनंद, लेकिन ब्लिस या जॉय इन्हें कहें तो. लेकिन जो संतोष या खुशी, ये जो शब्द है, इन सब में भी ये ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये भी, इनका अर्थ भी आनंद की तरह ही होगा. ये भी आनंद और खुशी या संतोष, ये सब एक ही शब्द होंगे, किंतु इन सब में बहुत ही अधिक अंतर है, बहुत ही बड़ा अंतर है. या हम ऐसे कहें कि इनमें कोई भी साम्य नहीं है, बिल्कुल ही अलग दो चीज है. क्योंकि आनंद, ब्रह्मानंद, ब्लिस और जॉय, ये जो पद हैं, ये इन अंशों का भौतिक जगत से, भौतिकता से कोई लेना देना नहीं है. ये केवल हमारे अंतर्गर्भित, हमारे अंतर
की बातें हैं, अंतर के विषय हैं, और इनका हमारे भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। भौतिकता में कुछ भी घटे तब भी आप आनंद में रह सकते हैं। भौतिकता में अगर आपके साथ कुछ भी प्रतिकूल घट रहा हो तब भी आप आनंद में ही रह सकते हैं। लेकिन जो खुशी, संतोष, ये जो बातें हैं, ये जो विषय हैं, ये केवल भौतिक जगत की बातें हैं। जब भौतिक जगत में हमारे साथ सब कुछ अच्छा और अनुकूल घट रहा होगा तभी हम अपने आप को खुश रख सकेंगे या संतोषमय रख सकेंगे। तो हालांकि ये दोनों शब्द एक से दिखते हैं और इनका अर्थ एक सा प्रतीत होता है, लेकिन इन सब में कोई भी साम्य नहीं है। बिल्कुल अलग, दो बिल्कुल अलग शब्द हैं और इनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं। वंडरफुल एक्सप्लेन। सो संतोष एक भौतिक परिस्थिति का प्रतीक है, लेकिन ब्रह्मानंद हमारा अंतरंग का, हमारा निजी स्थिति का प्रतीक है। तो ऐसा है माहौल। और वन मोर थिंग इज जॉय हैपेंस। Joy happens. It's a continuous phenomenon process. All the thing when we learn knowledge, we will realize that we are joyful. So joy is not an attempt. Joy is not an effort. Joy is a continuous phenomenon. It happens. So always, if there is a soul within us, soul is always in the joyful mood. Soul is always in the blissful mode. So every human being is captivated with a beautiful soul. In every soul, soul's innate consciousness is joy, bliss, ecstasy. Yes. तो जो आनंद की बात कर रहे हैं गुरुजी, आनंद के बारे में हमें बता रहे हैं कि आनंद कोई प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे अंदर हो जाता है, अपने आप होने वाली एक अपने आप घटता है हमारे अंदर, और ये हमारे अंतरंग की बात है। तो जॉय को हम ला नहीं सकते या जॉय में हम रहने की कोशिश या प्रयास नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप अंतर में हो जाता है। कैसे होता है? तो ये केवल ज्ञान और अंतरंग से होता है। जब हमारे पास yes, please continue. Yes. जब हमें स्वस्वरूप ज्ञान होता है और हमें यह मालूम होता है कि हमारे अंतर में आत्मा है, अद्भुत आत्मा है, तो ये आत्मा सदा 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 आनंदमय स्थिति में ही रहती है। और जब हमें ये ज्ञान होता है तो हम भी हर परिस्थिति में आनंद में ही रहते हैं। See, what every single word, every single factor we are learning today is indelible. Is indelible. What is indelible means you cannot afford to lose. As long as you are alive, you cannot afford to lose those factors. Those factors which are worthy to be always within us, which cannot be deleted, indelible. So every single factor we are learning today is indelible. तो गुरुजी कह रहे हैं कि आज हम जो भी एक एक शब्द जो भी हम जान रहे हैं, जिसको हम समझ और सीख रहे हैं, उनमें से एक एक शब्द इनडेलिबल है, यानी कि वो बिल्कुल भी भूलने योग्य या उससे खोने योग्य नहीं है। कि हम जिंदगी भर जब तक हम जीवित हैं तब तक ये पूरी संपत्ति हमारे साथ रहने वाली इस तरह की योग्यता इन शब्दों में है, इस ज्ञान में है। और one more astonishing thing is, joy is a continuous process. Even sometimes the character may respond accordingly, the character may lose its balance. When a tragic incident happens in the real life, accordingly, the character also may be in the tragic mode, in the tragedy. But believe me, my dear friends, though the character is in a tragic mode, though the character is suffering with a melancholy, still the unstoppable joy, bliss, joy is unstoppable. It's a phenomenal process. Sometimes the character may be suffering with
problems, tragedies, but still the joy continues. At a stage, the character suffers with the tragedy. On the spot, the soul will always be in the joyful condition. तो गुरुजी कह रहे हैं, let me tell you, I mean to say, the tragedy of the character is not entitled, is not worthy, it is not capable of stopping the bliss for a second. That is the thing I want to tell you. तो गुरुजी कह रहे हैं कि आनंद एक निरंतर और सदा चलने वाला एक अंतरंग का भाव है, कि ये सदा 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 सदा, यानी कि इसे रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है। और ये जो हमारा कैरेक्टर या चरित्र है, चाहे चरित्र हो सकता है, ऐसी संभावना है कि ये चरित्र में बहुत ही विषादपूर्ण स्थिति हो, चरित्र के साथ बहुत ही दुख और संकट और बहुत समस्याओं उनके साथ में घट रही हो, लेकिन फिर भी अंतरंग में जो आनंद है, वो आनंद सदा ही बना रहता है, सदा जारी रहता है। गुरुजी कह रहे हैं कि आपके चरित्र में वो योग्यता ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है कि वो आपके आत्मा के आनंद को या आपके अंतरंग के आनंद को एक पल, एक क्षण के लिए भी रोक सके। शिवोहम is Shiva plus Aham. As I already clarified you, that Shiva is soul. Soul is Shiva. And वो शिव का तत्व क्या है? शिव आनंद लहर। वो शिव आनंद लहर रूप में हमेशा ही होता ही रहता है। उस चरित्र में इतना क्षमता नहीं है कि हमारा ब्रह्मानंद पारवश्य को एक क्षण को लिए भी रोकने का क्षमता इस पदार्थ रूप जगत को नहीं है, चरित्र को नहीं है, क्योंकि हमारा निज स्थिति शिव है। शिव का निज स्वरूप ही आनंद है। आनंद का संभव अपने आप होता है, अपने आप ही होता है। और चरित्र में और पदार्थ रूप जगत में इसको इतना क्षमता नहीं कि हमारा निजी आनंद स्थिति को कम से कम एक क्षण के लिए भी रोकने का क्षमता उसमें नहीं है। That is what we have learned something about joy. It is only, see, some things you have got to understand hypothetically. Some things you have got to understand hypothetically. What is understanding hypothetically? What is accepting hypothetically means? कम से कम सिद्धांत रूप से हम उसको मानना पड़ेगा। Understanding, accepting a thing without evidence is called as hypothetically. When you began to accept, sometimes you'll experience, your experience will only be the evidence for that teaching. So that is why I appeal to all the aspirants, when we are teaching something about spirituality, please try to accept them hypothetically. Hypothetically means accepting the factors, at least intellectually, without any proof. When you are convinced, when your intelligence is convinced, you began to accept it. And later on, your acceptance is going to become an evidence. You are going to, your acceptance is going to transform into an experience. Your experience itself is going to become evidence. Anand, joy is also, you have got to accept hypothetically, at least. Yes. तो गुरुजी कह रहे हैं कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें हमें हाइपोथेटिकली मानना होगा, यानी कि सिद्धांत रूप से आपको उसमें पहले उसको जानना होगा और उसमें मानना होगा, उसमें विश्वास करना होगा। यानी कि जब आपके पास कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, प्रमाण उपस्थित नहीं है, तो आप पहले उससे सिद्धांत रूप से पहले आप उसमें विश्वास करें, और जब आप उसमें विश्वास करने लगेंगे और फिर उस चीज का आप गहराई से अध्ययन करेंगे और उसका अनुभव करेंगे, तो जो आपका अनुभव है वही आपके लिए प्रमाण रूप में उपलब्ध होगा। आपको वही आपका अनुभव ही आपके लिए प्रमाण सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ विषयों को हमें हाइपोथेटिकली
या सैद्धांतिक रूप से उसमें हमें विश्वास करना होता है। और इस तरह से जो विश्वास करने योग्य जो तत्व है उनमें से एक है आनंद। तो आनंद को भी इसी तरह पहले हमें सैद्धांतिक रूप से इसे समझना, जानना और मानना होगा, इसमें विश्वास करना होगा और यही हमारा प्रमाण बन जाएगा। Yes. So all this knowledge is captivated in a single mantra called असोच्यान। असोच्यान नामक एक लफ्ज में, एक मंत्र में ये सब उपस्थित है। असोच्यान। The moment you close and utter that mantra called असोच्यान, अपने आप एक जीवन नदी के तरह ये सब ज्ञान अपने आप आपके भीतर वो उपस्थित होना है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। यस। गुरुजी कह रहे हैं कि ये जो एक अद्भुत मंत्र है अशोच्यान, इस अशोच्यान मंत्र में ये सारा का सारा आनंद और ज्ञान पूरी तरह से मौजूद है। और जब आप इस मंत्र को उच्चारण करते हैं, इस मंत्र को आंख बंद करके आप इस मंत्र को अपनी पूरी श्रद्धा से उच्चारण करते हैं, तो इसमें भरा हुआ जो ज्ञान है वो पूरा हमारे अंदर एक जीव नदी की तरह हमारे अंदर प्रवाहित होने लगता है। तो इस अशोच्यान जो एक अद्भुत मंत्र के अंदर पूरा का पूरा समाया हुआ ज्ञान है, वो जब हम जैसे ही उच्चारण करते हैं इस मंत्र का, वो सारा का सारा ज्ञान जीव नदी की तरह हमारे अंदर प्रवाहित होने लगता है। परफेक्ट। सो chapter number 2 verse number 11 asochan, and the second thing is, if you want to apply Bhagavad Gita, if you want to nurture the grandest Gita into our neurological brain and modify or transform or reform our thinking pattern accordingly, then the second thing you have got to do is discard ruthlessly the factor called death, the term called death. Discard ruthlessly from your thinking pattern. आपका विचारधारा से अगर आप कृष्ण को मान रहे हैं, अगर आप कृष्ण को सम्मान कर रहे हैं, इसी वक्त आपका विचारधारा में तुरंत इसी क्षण आपका धारा से मृत्यु नामक एक अवैधिक अंश को मुंडन करना ही पड़ेगा। मुंडन कर देना बेटा। अगर आप कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, अगर आप सनातन संप्रदाय में पैदाइश हुआ, तो अगर आप गीता को सम्मान कर रहे हैं, तो तुरंत आपका विचारधारा से मृत्यु नामक एक अवैधिक अंश का मुंडन करना ही पड़ेगा। कर देना है। यस। तो गुरुजी कह रहे हैं कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, हम उनसे प्रेम करते हैं और हम भगवत गीता में विश्वास करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और हमारे सनातन संप्रदाय में यदि हम अपने आप को सनातन संप्रदायी मानते हैं, तो हमें अभी इसी क्षण, तत्काल इसी क्षण एक अवैधिक अंश को, एक अवैधिक शब्द को अपने विचार संविधान से, अपने दृष्टिकोण से अभी के अभी हमें मुंडन करना होगा, वह है मृत्यु। क्योंकि चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 12 में आचार्य ने साफ साफ हमको उपदेश दे दिया कि हम सब शाश्वत है, हम सब कभी भी है और शाश्वत है। वी आर देयर फॉर एवर, वी आर ऑलवेज देयर। सो हम शाश्वत है। सो मृत्यु नामक अवैधिक अंश इसलिए हम मुंडन कर रहे हैं कि शाश्वत को
मृत्यु नहीं है, मरने वाला शाश्वत होने का संभव ही नहीं है। अगर आप मरने वाला शाश्वत होने का संभव नहीं है, जो मरता है वो शाश्वत नहीं है, जो शाश्वत है वो मरता नहीं है। हमारे में मरने वाला चीज क्या है? मरने वाला व्यवस्था क्या है? मरने वाला व्यवस्था सिर्फ शरीर है। हमको एक चीज मर जाना, मरना, मृत्यु नामक एक चीज हमारा विचारधारा से तुरंत हमको मुंडन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 12 में 12वें श्लोक में हमको ये पता हो गया, जानकारी हो गया, शाश्वतत्व के अंश के बारे में हमको इतना जानकारी हो गई, हम सब शाश्वत है। जो शाश्वत है वो मरता नहीं, जो मर रहा है वो शाश्वत नहीं है। हमें मरने वाला कौन है? हमें मरने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक पदार्थ रूप शरीर का जीव लक्षण है। मरने का संभव उसी को है, लेकिन आत्म चैतन्य में, उसके दृष्टिकोण में, उसका विचारधारा में मरने का संभव ही नहीं है। इसलिए immediately, if you want to respect Gita, if you want to respect Lord Sri Krishna, please ruthlessly discard the term factor called death from your thinking pattern with immediate effect. Don't postpone it to tomorrow, with immediate effect, right now. Yes. तो गुरुजी कह रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता में 12वें सांख्य शास्त्र के 12वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है हमें कि एक शाश्वत तत्व के बारे में हमें एक जानकारी दी है कि हम सब शाश्वत हैं, हम सब हर काल में सदा 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 विद्यमान हैं। और यदि हम मृत्यु में विश्वास करते हैं तो मृत्यु यानी कि एक समय में आरंभ होना और एक समय में ना रहना, तो जिसकी मृत्यु हो जाए वो शाश्वत नहीं हो सकता, और जो शाश्वत है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो हम यदि शाश्वत हैं तो मर जाना या मृत्यु को प्राप्त होना, ये हमारे लिए इस बात की संभावना ही नहीं है, ये हमारे लिए असंभव है। इसीलिए दोनों चीजें हो ही नहीं सकती। इसीलिए हम सबको अपने विचार संविधान से अभी के अभी इसी क्षण तत्काल इस मृत्यु शब्द का मुंडन करना ही होगा। So at this juncture, all the aspirants might have accepted hypothetically that they are forever beings. At this juncture, all the aspirants might have accepted, at least hypothetically, that they are forever beings. इस जंक्चर पर सभी साधक को कम से कम ये महसूस हो जाता है कि हम शाश्वत हैं। सब साधकों को कम से कम ये महसूस होता है कि हम शाश्वत हैं। And simply I'm asking one question. If you are not God, under what capacity you are forever? Simple answer. If you are not God, under what capacity you are forever? अगर आप ईश्वर नहीं है तो शाश्वत जिंदगी जीने का हैसियत, क्षमता आपको कैसा हो गया? If you are not God, under what capacity you are forever? अगर आप खुद ईश्वर नहीं है तो शाश्वत जिंदगी जीने का क्षमता आपको कैसा होगा? Simple one thing I'm telling you. The number one factor is Lord Sri Krishna has categorically emphasized and taught us some beautiful truth that we are going to exist forever and ever and ever. Just tell them in Hindi. तो गुरुजी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने हमें ये एक बात हमें 12वें श्लोक में हमें बताए कि हम सब शाश्वत हैं, हम सब सदा 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 विद्यमान हैं। Yes, विद्यमान। अगर आप ईश्वर नहीं है तो शाश्वत जैसा माहौल का हमको क्षमता क्या है, कहां से आया? That is what you have heard. If you are not God, under what capacity you are forever? अगर खुद आप ईश्वर नहीं तो शाश्वत जिंदगी जीने का क्षमता
आपको कहां से आया? That you have got to understand. Yes. तो गुरुजी कह रहे हैं कि यदि जब श्री कृष्ण ने कहा है कि आप शाश्वत हैं, तो यदि हम ईश्वर नहीं हैं, यदि आप सब ईश्वर नहीं हैं, तो आपको शाश्वत कहलाने का, शाश्वत जीवन जीने की क्षमता, ऐसी योग्यता आपको कहां से आएगी? So, my dear aspirants, just celebrate this life. You are an entities. You are going to exist forever because you are forever. You are gods. You are divine beings. You are joyous entities. Today, I have given a brief introduction about the bliss, the state of bliss, the state of your foreverness, the state of your divinity. Today, I have given a brief introduction about your joy, about your foreverness, and about your divinity. आपका ईश्वरत्व के बारे में, आपका ब्रह्मानंद सहजत्व के बारे में, और आपका शाश्वतत्व के बारे में कुछ लघु परिचय किया मैं, सिर्फ लघु परिचय किया मैं. यस. तो गुरुजी कह रहे हैं कि आइए हम सब अब से इस शाश्वत और इस आनंदमय जीवन का उत्सव मनाते हैं. और गुरुजी कह रहे हैं कि आज मैंने आप सबको आपके शाश्वत तत्व के बारे में, आपके दिव्यत्व के बारे में और आपके ब्रह्मानंद पारवश्य, आपके ब्रह्मानंद आनंद के बारे में, आपके ब्रह्मानंद पारवश्य के बारे में उन्होंने एक लघु परिचय दिया है हमें. जस्ट उसका प्रारंभिक ज्ञान हमें दिया है. अपने आप को ब्रह्म मानने से ही ब्रह्मानंद का शुरुआत होता है. अपने आप को ब्रह्म मानने से ही ब्रह्मानंद का शुरुआत होता है. हम कभी भी ब्रह्मा ही है, लेकिन उसका जानकारी हमारे पास नहीं. जब हमको ये जानकारी मिल जाता है, ये भी मालूम हो जाता है हमारा सहजत्व आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है. ओके, दैट इज द थिंग. So at this stage, let us shift our gears from sloka number 12 to sloka number 30. Okay. See, I'm just on a lighter note, I'm explaining this. Don't take it in a serious way. On a lighter note. On a lighter note, Lord Sri Krishna is teaching this beautiful phenomenon teaching to an aspirant, to a human being, considering to be a god, but he has yet to realize. Arjuna is also a god, but he is yet to realize. Now he is suffering with Tattva Jnana Sunyata. He is suffering with a disease, and the name of the disease is Tattva Jnana Sunyata. Tattva Jnana Sunyata नामक एक problem से वो suffer हो रहा है. Okay, so then Arjuna is in a state of melancholy. Let me explain you step by step so that you can explain them in Hindi. Now we are shifting our gears from sloka number 12 to sloka number 13. Yes. तो अब गुरुजी श्लोक नंबर 12वें श्लोक से हमें 13वें श्लोक पर लेके जा रहे हैं. Yes. And now I'm just explaining you some factors. Take them on a lighter note. Don't take them seriously. On a lighter note. अब जो गुरुजी हमें बताने जा रहे हैं, उसको आप थोड़ी सी सरलता से, थोड़े से लाइटली लीजिए उसको. See, Lord Sri Krishna is explaining Arjuna, and Arjuna was believing that he is going to die. He is going to die, or his kith and kin are going to die, or his relatives are going to die, or his family members are going to die. So that is the cause of the tragic behavior of the Arjuna. That is the cause of tragic behavior of the Arjuna. Yes. तो गुरुजी कह रहे हैं कि अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन एक तत्व ज्ञान शून्यता से ग्रसित है, और वो ऐसा सोच रहा है कि यानी कि मेरे बाद मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मेरे परिवार मरने वाला है, मेरे रिश्तेदार मरने वाला. वो मृत्यु में विश्वास कर रहा है. इसके लिए वो इतना
इतना व्हाट यू कॉल ट्रेजिक हो गया, इतना विचार हो गया, इतना वरी हो रहा है। यस। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो अर्जुन एक ऐसे भाव से ग्रसित है कि वो समझ रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे ये जो सारे बच्चे हैं, मेरे जो पूरा मेरे पीछे मेरी जो पूरी पीढ़ी है ये सारी मरने वाली है, मेरे सारे सगे संबंधी रिश्तेदार सब मर जाएंगे, और इस तरह से मेरे सारे गुरुजन ये सारे परिचित जन मर जाएंगे। इस तरह से ये एक बहुत विषादपूर्ण स्थिति से वो गुजर रहा है। गुजर रहा है। At this juncture, Lord Sri Krishna has clarified that no, you are not going to die. You are going to exist forever and ever and ever. And foreverness is your original consciousness, is your innate consciousness. Believe me, my dear friend, no one is, neither you are going to die, nor your family members are going to suffer death, nor your relatives are going to suffer death, nor your kith and kin are going to suffer death. No one will, even your enemies are not going to die. All of us are endowed with an innate consciousness, that is foreverness. That is the first clarification given by Lord Sri Krishna to Arjuna. Yes. तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ना तो तुम मरने वाले हो, ना ही तुम्हारे ये बच्चे, तुम्हारा जो पूरा तुम्हारी जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, वो भी नहीं मरने वाली है, तुम्हारे सारे मित्र भी नहीं मरने वाले हैं, तुम्हारे शत्रु भी नहीं मरने वाले हैं, इनमें से कोई भी नहीं मरने वाला है, इनमें से कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, और ये सब के सब शाश्वत हैं, सब के सब विद्यमान रहने वाले हैं। और ईश्वर, हम सब ईश्वर है, ईश्वर का सहजत्व ही शाश्वतत्व। कैसा? हम सब ईश्वर है और ईश्वर का सहजत्व शाश्वतत्व है। शाश्वतत्व ही है। Then Arjuna felt very happy. Oh, so you mean to say that I'm not going to die? Yes, that is what I mean to say. Seriously? Yes, very seriously. You mean to say that I don't die? Arey Baba, you are not going to die. You mean to say that my family members are not going to die? No, no one is going to die. You mean to say my relatives, my kith and kin, nobody is going to die? Oh, so joyful. He was in the state of happiness. He was in the state of joy like anything. Okay, the teaching is over. Lord Sri Krishna is about to leave that premises. He thought, I have made him realize about his foreverness. The mission is over. He was about to leave that premises. Then suddenly he found some crying. He was shocked. Who is crying? Then again Arjuna is crying. Again Arjuna is crying. Hare Baba, I have categorically made it very clear that you are going to exist forever. Now what is the cause of your worry? Sir, you said that I am not going to die. That is a thing to be celebrated. But my embodiment is going to suffer death now. My embodiment is going to suffer death now. I have taken care of this embodiment like anything. I have used costly medicines. I have used all protein foods. I have used Amway medicines to protect my embodiment. My embodiment is going to suffer death now. It is going to be buried now. That is why I am worried. That is why I am. Now, the worry of Arjuna is not about his foreverness. He is not able to tolerate that. Why should my embodiment, I am going to lose my embodiment? No. Now my worry is about my embodiment. Please explain that. तो जब श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तुम मरने वाले हो, ना तुम्हारे कोई संतानें, ये सब के सब शाश्वत हैं और हमेशा विद्यमान रहेंगी, तो अर्जुन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अच्छा, तो क्या मैं नहीं मरने वाला हूँ और मेरी संतानें भी जीवित रहेंगी? क्या ये सच है? क्या बिल्कुल आप सच बोल रहे हो? क्या मैं नहीं मरूंगा? मेरे ये सारे मित्रजन नहीं मरेंगे? मेरी संतानें जीवित रहेंगी? और वो बहुत ही आनंद, मतलब खुश हो जाता है, वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। और श्री कृष्ण को भी विश्वास हो जाता है कि चलो अच्छा है, मैंने इसको पूरा ज्ञान दे दिया, इसको इसके शाश्वत तत्व के बारे में समग्र ज्ञान दे दिया, मैंने जानकारी दे दी, और वे वे उस स्थल को छोड़कर जाने लगते हैं कि मेरा काम खत्म हो गया।
तो देखते हैं तो अर्जुन बहुत ही फिर जोर से जोर आवाज से आवाज फिर से आती देखो रहती है उसके आवाज। रोने की। तो हम्म अर्जुन रोना आरंभ कर देता है। तो कृष्ण कहते हैं कि अब क्या हुआ, तुम्हारी चिंता का जो कारण था कि मृत्यु, उसका तो मैंने समाधान कर दिया कि मृत्यु को कोई भी प्राप्त नहीं होगा, तो अब तुम क्यों रो रहे हो। तो अर्जुन कहता है कि माना कि मैं नहीं मरूंगा, लेकिन ये मेरा जो देह है, मेरी ये जो शरीर है, ये तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ये तो नष्ट हो जाएगा। मैंने कितना प्यार किया था इस शरीर से, मैंने इस शरीर के लिए कितना अथक प्रयत्न किया इसको अच्छा रखने के लिए, इसको सुंदर रखने के लिए। मैंने इसकी कितनी मतलब महंगा मैंने पोषक आहार लिया, और एम्वे की मेडिसिन इतनी महंगी मैंने, दो दे आर वेरी कॉस्टली। बहुत ही महंगी जो सामग्री पदार्थ है वो And he सब has मैंने, not used Lifebuoy soap. He has always used Pear soap for face and the तो entire embodiment. तो मैंने लाइफ बॉय साबुन से इसे नहीं सुंदर बनाया, मैंने इसे पियर्स साबुन से सुंदर बनाया है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मुझे ये शरीर बहुत प्रिय है, और ये शरीर नष्ट हो जाएगा, इसे दफनाना पड़ेगा, इसे जलाना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। तो अब जो अर्जुन की चिंता का विषय है वो मृत्यु नहीं है, वो है ये शरीर। तो अब वो इस तरह से इस शरीर की चिंता से दुखी है। So अभी अर्जुन का विचार का वजह है शरीर, शरीर है। Then Lord Sri Krishna, oh, you are worrying for your embodiment. Then listen this knowledge. Then why don't you listen to this knowledge? Then Lord Sri Krishna has taught the beautiful sloka, chapter number 2, verse number 13. Please read that sloka. Chapter number 2, verse number 13. Please. तो अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारे चिंता का कारण, तुम्हारी इस परेशानी का कारण ये शरीर है। अच्छा, तो तुम इस शरीर के लिए चिंताजनक हो, इस शरीर के लिए तुम दुखी हो। तो चलिए तुमको मैं 13वां श्लोक, आगे का एक श्लोक बताता हूँ, समझाता हूँ। तो Yes, read that sloka. Chapter number 2, verse number 13. अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक नंबर 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर तत्र न मुह्यति। Yes, yes, yes. Please read the sloka again. द्वितीय अध्याय 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर तत्र न मुह्यति। Yes. हिंदी में बता इसका। जैसे, इसका अर्थ, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। So let us start with this beautiful explanation. इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। An enlightened being is never scared of embodiment. He doesn't worry because his embodiment is going to die. He never bothers. He never pays any attention to his embodiment. He will never go to a tragic mood for his embodiment. Because, please explain that. An enlightened being will never ever bother for his embodiment. I mean to say, he will not go to a tragic mode considering the death of the embodiment. मैं तो मरने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरा शरीर मर रहा है ना। मेरा दुखित का वजह शरीर का मृत्यु। लेकिन लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अगर तुम एक पंडित हो,
एक पंडित अपना शरीर के मृत्यु के बारे में एक क्षण के लिए भी विचार नहीं होता है. ओके, टेल देम. तो श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी और धीर पुरुष है, वे कभी भी इस शरीर के नष्ट होने के कारण चिंता नहीं करते, उसके लिए दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि जो मर रहा है वो शरीर है ना. तुम जीवित हो, तुम सदा विद्यमान हो, तुम जीवित हो. तो इस तरह से विचार करके, इस तरह से जानकारी जिन्हें होती है, ऐसे धीर पुरुष, ऐसे ज्ञानी पुरुष कभी भी केवल इस शरीर की वजह से कि ये शरीर नहीं रहेगा, इस चिंता में ये शरीर नष्ट हो जाएगा, इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते और उसके लिए दुखी नहीं होते. बिकॉज ही सेज वैसा ही अन्य शरीर को प्राप्त करने का अन्य शरीर की प्राप्त होती है. What he means to tell you is, it is very easy to have one more embodiment. If this embodiment is getting perished, then don't worry. See, when you will worry, this embodiment is going to die. And I'm not able to get, and there is no possibility of getting a new embodiment. Then Lord Sri Krishna says, don't worry, boss. If this embodiment is going to die now, why don't you? You can choose, just choose a new embodiment. It is quite easy. There is a possibility of this soul entering into another embodiment. It is quite easy. इतना संभव है ना. अगर ये आत्म चैतन्य सिर्फ एक ही शरीर प्रांगण में ही जा सकता है, दूसरे शरीर को दूसरे शरीर को पहनने का क्षमता उसमें नहीं है, तो then you have got to worry. But Lord Sri Krishna says, अगर ये शरीर गया तो जाने दो और एक नया शरीर हम पहन सकते हैं. ऐसा. That is why an enlightened being knows pretty well that once the embodiment is perished, there is a possibility of new embodiment. That is why he doesn't care for the death of the embodiment. As simple as such. तो जो ज्ञानी जन होते हैं वो बिल्कुल भी इस शरीर की नष्ट होने के बारे में चिंता नहीं करते, दुखी नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि यदि आपका ये शरीर अगर मान लीजिए ये नष्ट हो भी जाता है, तो एक नया शरीर आपको तत्काल बहुत ही सुलभता से, बहुत ही सरलता से आप वापस दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं. अभी तक आपने इस शरीर को पहना हुआ है, मान लीजिए ये शरीर नष्ट भी हो जाता है, चला भी जाता है, तो आप बड़ी ही सरलता से, बड़ी आसानी से, सुलभता से दूसरे शरीर को पहन सकते हैं. आपको चिंता तो तब करनी चाहिए कि मान लीजिए अगर आप ऐसा होता कि आपको केवल एक ही शरीर, इसी शरीर में आप रह सकते हैं, इसके बाद आपको दूसरा कोई शरीर नहीं मिलेगा. मान लीजिए ये शरीर नष्ट हो जाए तो आप कभी दूसरे शरीर में नहीं जा सकते, तब तो तुम्हें चिंता करनी चाहिए. लेकिन जब ये शरीर नष्ट हो जाए और बड़ी ही आसानी से, सुगमता से आपको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाए, तो आप क्यों इसकी चिंता करना, इसके बारे में क्यों दुखी होना. आत्म चैतन्य का सहजत्व यह है कि अगर एक शरीर मर गया तो तुरंत और एक नया शरीर में प्रवेशित होना आत्म चैतन्य का सहजत्व है. आत्म चैतन्य का सहजत्व यह है कि अगर समझो ये शरीर मर गया, ये शरीर का नष्ट हो गया, ये शरीर का पतन हो गया, तुरंत एक नया शरीर में प्रवेश होने का क्षमता उसका सहजत्व है, उसका सहजत्व है. प्लीज एक्सप्लेन दैट. तो ये आत्म चैतन्य का सहजत्व गुरुजी बता रहे हैं कि मान लीजिए एक शरीर नष्ट हो गया तो तुरंत बड़ी आसानी से और बड़ी सहजता से तुरंत ही वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है. ये आत्म चैतन्य की सहजता है. बड़े सहज रूप से वो, एक शरीर खत्म हो गया, एक शरीर नष्ट हो गया, तो सहज रूप से वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है. लेकिन it is very difficult for the aspirant to understand this factor. It is very difficult for an aspirant, for an embodied aspirant to understand this typical truth. It is very difficult for an embodied human being to understand this typical truth. Explain. तो इस शरीर में रहने वाले एक
मनुष्य के लिए इस बात को, इस गूढ़ विषय को समझना, उसे मानना बहुत ही कठिन कार्य होता है, बहुत ही दुर्गम विषय होता है। That is why he has made it very simple. He has made it very clear. He has given a simple example. He has given a simple example. And he said, see, when the Jivatma enters into the embodiment, when the Jivatma or the Atma Chaitanya enters into, forget about Jivatma. A beautiful soul enters into an embodiment. A beautiful soul enters into an embodiment. And now the embodiment is in a state of like a child. After time span, it has become youth. After time span, it is suffering with old age. The soul's journey is continuous. It is continuously there when the soul, when the embodiment is in the state of childhood, when the embodiment enters into the puberty, when the embodiment enters into the youthful state, when the embodiment is suffering old age. But still, the soul is there now. The soul is there in the embodiment in all these 6 stages. In all these stages, the soul continues to exist in the embodiment in all these stages. Because it is the natural capacity of the soul to continue in the embodiment in all the different stages. In the same way, supposing the embodiment dies, in the same way, the soul has a miraculous performance. It can as well as enter into a new embodiment. It is as simple as that. Please stop crying. First of all, please stop crying. That is a simple teaching taught by Lord, beautiful enlightened being Lord Sri Krishna. Yes. तो गुरुजी कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे एक इतने परम गुरु जो श्री कृष्ण हैं, ये हमें इस बात को समझाने के लिए, सरलता से समझाने के लिए उसका प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए जो चीज मानना बहुत ही कठिन है कि इतनी सहजता से मान लिया कि, लेकिन इस बात को उसको पचाना, उसको डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल बात है। इसीलिए श्री कृष्ण परम गुरु एक बहुत ही अच्छा सा एक दृष्टांत, एक उदाहरण दे रहे हैं। वे कहते हैं कि जब आत्म चैतन्य इस शरीर में, इस देह में प्रवेश करता है और जीवन का आरंभ होता है, तो वही आत्म चैतन्य जब एक छोटे से बच्चे की शिशु अवस्था से एक बालक अवस्था में प्रवेश करता है, वही आत्म चैतन्य उस शिशु अवस्था में भी कंटिन्यू है, निरंतर विद्यमान है। और वही आत्म चैतन्य जब वो शिशु एक बालक का रूप लेता है, तब भी वो कुमार का रूप लेता है, तब भी वो वही आत्म चैतन्य उसमें रहता है, विद्यमान रहता है। जब वो उस बालपन से यौवन की तरफ अग्रसर होता है, तब भी वही आत्म चैतन्य उसमें जारी रहता है, उसमें निरंतर विद्यमान रहता है। और जब वो यौवन से लेकर वो मनुष्य वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, तब भी वही आत्म चैतन्य उसमें विद्यमान होता है। तो एक जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था परिवर्तित होते रहती है, तो वही आत्म चैतन्य उसके अंदर उपस्थित होता है, विद्यमान रहता है, निरंतर बना रहता है, जारी रहता है। लेकिन शरीर नष्ट होने के बाद अब चिंता करने की का विषय इसलिए नहीं है कि जैसे ही ये शरीर नष्ट हो जाता है, इस आत्म चैतन्य का सहजत्व है। मान लीजिए ये शरीर नष्ट हो गया, तुरंत सहज रूप से वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है, दूसरा शरीर उसको प्राप्त हो जाता है। तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जैसे ये सारी मनुष्य की अवस्थाएं सहज रूप से, आप जब दुखी नहीं होते इन अवस्थाओं को में जाने से पहले, तो इसी तरह से इसमें भी दुख होने का कोई विषय नहीं है। ओके, यस, कंपेयर जैसा एक आत्म चैतन्य एक शरीर प्रांगण में प्रवेश होने के बाद, एक आत्म चैतन्य एक शरीर प्रांगण में प्रवेश होने के बाद, समझो वो शरीर बालक व्यवस्था में है, समझो ये शरीर यौवन व्यवस्था में, समझो वो शरीर वृद्धावस्था में है, तो भी वो आत्मचैन उसी शरीर में मौजूद है ना, तो भी वो आत्मचैन उसी शरीर में मौजूद है ना।
ये सहजत्व है। ऐसा ही आगे समझो, इस शरीर मर गया तो दूसरे शरीर में प्रवेश होने का इतना सुलभ तरीका उसके पास है। He has compared this with that. He has compared this with that. Again, I am repeating. एक आप महिमान्वित आत्म चैतन्य, एक पदार्थ निर्मित शरीर प्रांगण में प्रवेश होने के बाद, समझो एक पदार्थ निर्मित शरीर पहले वो बालक अवस्था में है, बाद में वो यौवन अवस्था में प्रवेश किया, कुछ दिनों के बाद वो वृद्धावस्था में प्रवेश हुआ। लेकिन आत्म चैतन्य बालक व्यवस्था में भी मौजूद है, उसका 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 बालक व्यवस्था में भी उस शरीर में मौजूद है, यौवन व्यवस्था में भी उस शरीर में मौजूद है। ऐसा ही वृद्ध व्यवस्था में भी वो आत्म चैतन्य उसी शरीर में मौजूद है। ऐसा ही इन द सेम वे इसका ये सहजत्व है ना, आत्म चैतन्य का सहजत्व है। ऐसा ही आत्म चैतन्य का सहजत्व है। अगर समझे शरीर गिर गया, समझे शरीर मर गया, तो और एक शरीर में प्रवेशित होना हैसियत आत्म चैतन्य का सहजत्व है। Yes, compared the phenomenon souls with the soul's behavior, you know pretty well, because now it is embodied. You know pretty well that once the embodiment is living, he cannot live without soul, without soul. So once the embodiment is very much alive, though it may be a child, though it may be in the youthful stage, though it may be in the vruddha, once the embodiment is there, then it is clear that the soul is embodied, that the soul is captivated within the embodiment. So still the soul is there now. When it is child, the soul is there. When the puberty, the soul is there. When the embodiment is suffering with old age, still the soul is there. Because then the soul is entitled to enjoy, experience all the factors of all the stages of the embodiment. In the same way, supposing the embodiment perishes, the soul is entitled to enter into the embodiment, as simple as such. Explain that. तो गुरुजी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण इस उदाहरण से हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे एक शिशु अवस्था में जब आत्मा प्रवेश करती है, एक शिशु के लिए जब इस शरीर में प्रवेश करती है, तो इसका अर्थ है कि जब भी वो पूरी अवस्था में रहेगी तो आत्म चैतन्य उस शरीर में मौजूद रहता है, उपस्थित रहता है। शिशु अवस्था से कौमार्य अवस्था में जब जाएगी तो वही आत्म चैतन्य उसके अंदर उपस्थित रहता है। जब कुमार अवस्था से यौवन में जाएगा तब भी यही आत्म चैतन्य, ये आत्म चैतन्य सहज रूप से उसके अंदर विद्यमान रहता है और अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है ना। अब यौवन अवस्था से जब वृद्धावस्था को वो जाता है तभी भी वही आत्म चैतन्य उतनी ही सहजता से उसके अंदर उपस्थित है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, वे तुलना कर रहे हैं, जैसे ये सारी अवस्थाएं आत्मा का सहजत्व है, वैसे ही उतनी ही आत्मा का सहजत्व नहीं, जैसा ये सारी व्यवस्थाओं में आत्मा मौजूद होने का सहजत्व है और वृद्धाप्य आत्मा का सहजत्व नहीं। शरीर का सहजत्व वृद्धाप्य है, उस व्यवस्था में भी शरीर में मौजूद होना आत्म चैतन्य का सहजत्व है। उसी तरीके से उसी सहजत्व, शरीर गिर गया तो भी और एक नया शरीर में प्रवेशित होने का भी आत्म चैतन्य का सहजत्व है। जी, तो गुरुजी कह रहे हैं कि जैसे कि इन सारी अवस्थाओं में उपस्थित रहना, इन सारी अवस्थाओं में उपस्थित रहना आत्मा का सहजत्व है। इन सारी अवस्थाएं बदली हैं, लेकिन आत्मा तब भी इसमें उपस्थित है, विद्यमान है। वैसे ही जैसे ये शरीर मान लीजिए गिर जाता है, शरीर मान लीजिए नष्ट हो जाता है, तो दूसरे शरीर को प्राप्त करना भी उतना ही सहजत्व है, ये आत्मा का सहजत्व है। Perfect. So here at this juncture, I just want to clarify that these people misunderstood this, misinterpreted this. Read that bhav, not slok. जी, अध्याय 2 13वां श्लोक। अर्थ, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही। See, that is the problem. जैसे जीवात्मा की, as if जीवात्मा is suffering with balakpan,
जैसे जीवात्मा is suffering with jawani, जैसे जीवात्मा is suffering with वृद्धावस्था. That is wrong. जीवात्मा शरीर ही नहीं है ना, ये सब शरीर का व्यवस्था है. That is wrong. What Lord Sri Krishna was telling, again I have written that sloka. From my point of view, what Lord Sri Krishna was trying to teach us is this: जैसा जीवात्मा शरीर प्रांगण में प्रवेशित होकर शरीर के विभिन्न व्यवस्थाओं में, जैसा बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था में सफर करते हैं, वैसा ही शरीर के अंत के बाद और एक शरीर प्राप्त करने का सुविधा भी है, और एक शरीर प्राप्त करने का सुविधा भी है, संभव है. So please कैमरा टिपिकल was so this is very important thing, my dear aspirants. Never ever mistake that as if Jivatma is going to suffer old age, Jivatma is going to celebrate youthfulness or like that. The Jivatma is a separate phenomenon, spiritual consciousness. So that is why the true meaning is like this. ఇది కరెక్ట్, ఎక్కడ మిస్టేక్స్ లేవు కమ్మా. ఇప్పుడు నేను చదివిన దాంట్లో మళ్ళీ చెప్తాను, ఇది కరెక్ట్. ఎందుకంటే సోల్ వృద్ధాప్యం వస్తుందా? ఇట్ ఇస్ నాట్, ద జీవాత్మ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు సఫర్ విత్ ఓల్డ్ ఏజ్. సో దట్ ఈస్ వై देह, जैसा जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, इट इज ए ब्लेंडर. जी जी गुरु जी. The thing is, जैसे जीवात्मा शरीर प्रांगण में प्रवेशित होकर, जैसे जीवात्मा शरीर प्रांगण में प्रवेशित होकर शरीर की विभिन्न व्यवस्थाओं, जैसा बालकपन, जवानी और वृद्धाप्य में सफर करती है. सफर एंड जर्नी है जी, जिंदगी एक सफर, यात्रा करती है. वैसे ही शरीर के अंत के बाद और एक नया शरीर प्राप्त करने का सुविधा है. जी, सुविधा. And at this juncture you have got, why I have used the word सुविधा? It is not compulsory, it is only a choice. That is why I said सुविधा. जी. It is inevitable. You have got to suffer with another embodiment. He is not telling that, if you want, if the soul wants to make one more visit to this earth planet, it can prefer a new embodiment. There is nothing to worry. If really the soul wants to visit this earth planet one more time, it can as well as choose a new embodiment. अगर आत्म चैतन्य का और एक बार पृथ्वी पर आने का मन है तो और एक शरीर को अपने का क्षमता भी उसको है. But it is not compulsory. That is why I said सुविधा. Okay. So with this, but I advise you to write it down tomorrow, or else now also you can write it down, so that everyone will write it down. Yes. Why don't you take a pen and write it down right now, so that everyone can write it down. There are no ग्राम व्याकरण का दोष नहीं है ना उसमें? जी नहीं गुरु जी, बिल्कुल अगर है तो मुझे प्लीज करेक्ट मी. नहीं है, बिल्कुल सही है. सफर అనకూడదు కదా, యాత్ర అనాలా? हाँ जी जी गुरु. अच्छा वर्ड, यात्रा. So please write down. जैसे जीवात्मा चलाए. जी गुरु जी. जैसे जीवात्मा शरीर प्रांगण में प्रवेशित होकर, जैसे जीवात्मा शरीर प्रांगण में प्रवेशित होकर शरीर के विभिन्न व्यवस्थाओं में इन ब्रैकेट्स, जैसा बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था
ब्रैकेट्स क्लोज, में यात्रा करती है, में यात्रा करती है, वैसा ही शरीर के अंत के बाद, वैसा ही शरीर के अंत के बाद और एक नया शरीर प्राप्त करने का सुविधा भी है, और एक नया शरीर प्राप्त करने का सुविधा भी है। अगेन आई रिपीट, जैसा जीवात्मा शरीर प्रांगण में प्रवेश होकर शरीर के विभिन्न व्यवस्थाओं में, जैसा बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था में यात्रा करती है, वैसा ही शरीर के अंत के बाद और एक नया शरीर को प्राप्त करने का सुविधा भी है। That's it. So, Mamta. जी गुरुजी। Okay, I have explained. You can just write it down. Yes. But the important points, the crux of the nucleus of this particular sloka is, it is purely the choice of soul. If really the soul wants to visit this embodiment once again, then only the soul prefers a new embodiment. Entering into the new embodiment is purely the choice of the soul. There is no word called compulsory. That is why I have used the word suvidha. सुविधा। Please explain them. जी, तो गुरुजी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये उन्होंने जैसे बताया कि ये सारी अवस्थाओं में जब आत्मा या जीवात्मा आत्म चैतन्य उपस्थित होता है और इस शरीर के नष्ट होने के उपरांत भी वो उतनी ही सहजता से दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश हो जाता है। तो ये जो दूसरे शरीर के प्रवेश करने के लिए गुरुजी ने एक शब्द का उपयोग किया है, सुविधा, क्योंकि उन्होंने ये शब्द इसीलिए उपयोग में लाया है कि ऐसी कोई वो जो जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल ऐसी जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये शरीर त्याग करने के बाद उसको दूसरे शरीर में जाना ही होगा। वो कोई दूसरे जबरदस्ती शरीर नहीं में, है उसमें। जी बिल्कुल, और वो दूसरे शरीर में उसको जाने के लिए वो बाध्य नहीं है, उसे कोई जबरदस्ती नहीं है, ये उसका चुनाव है। अगर वो चाहे, यदि वो इस भूतल पर और जीवन जीना चाह रही है, अगर उसकी ऐसी इच्छा है, तो ये भी एक व्यवस्था उपलब्ध है, ये सुविधा उसके लिए उपलब्ध है। So, आत्म चैतन्य दूसरे शरीर में प्रवेश होने का दबाव नहीं है, चुनाव। कोई दबाव नहीं है, सिर्फ चुनाव है। And one more thing is, it is not that the soul is suffering this youthfulness, this puberty, this old age. It is only in spite of all these changes which are happening in the soul, which are happening in the embodiment, still the soul is capable of accommodating this embodiment. That is the beauty. Please, my dear aspirants, never ever mistake that as if the soul is going to suffer the youthfulness, the soul is going to suffer the childishness, the soul is going to suffer the old age. The efficiency of the soul is, though the body is suffering with all these ages, still the soul is efficient in continuing with that embodiment. That is the thing. The soul is not going to suffer old age or like that. Soul is beyond time, distance and space. That is an important factor. तो गुरुजी यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश पर हमारा ध्यान ले जाना चाह रहे हैं कि जैसे कि इस अनुवाद जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है, उसको पढ़ने से हमको ऐसा इसका अर्थ प्रतीत होता है कि गलतफहमी होने का संभव है, गलतफहमी होने का संभव है। हाँ, तो ये हमें ऐसी गलतफहमी हो सकती है इसको पढ़ने से कि मानो कि ये जीवात्मा की अवस्थाएं हैं, कि जीवात्मा इन सारी अवस्थाओं से गुजरती है, कि जीवात्मा शिशुपन, जीवात्मा की अगली अवस्था, जीवात्मा ही बालक हो जाती है, जीवात्मा ही फिर यौवन अवस्था में प्रवेश करती है और वही वृद्धा अवस्था को प्राप्त होती है। गुरुजी पिक्चर उल्टा हो गया है। तो गुरुजी यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि
कि जीवात्मा, जैसा कि इस श्लोक को पढ़ने से हमें ये गलतफहमी होने की संभावना है कि मानो कि जीवात्मा इन सारी अवस्थाओं को प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। श्री कृष्ण ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जीवात्मा इन सारी अवस्थाओं में उपस्थित होती है और अपने अस्तित्व को जारी रखती है। बिल्कुल वैसे ही अगर वो चाहे, अगर वो चुने इस और एक और शरीर में जाना, तो वो बहुत ही सुलभता से, उतनी ही सहजता से दूसरे शरीर को प्राप्त कर सकती है। तो आज गुरु जी के इस ज्ञान के साथ ही आज का हमारा सत्र यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर एक नए सत्र के साथ आपके सामने हम सब उपस्थित होंगे। नमस्कार।